सर Thank you, सर आपल्या चष्म्याचा नंबर काढण्याचं लेझर असतो ना सर ते अल्ट्रा HD टेक्नॉलॉजी आहे. My name is Mayuri. So, welcome to inauguration of Drishti Eye Hospital. And Dr. Hemant is here, and he is practicing since 2007. I would like to give information about Dr. Hemant Shasia, Dr. Yash Parman, and Dr. Srushti Naik. good morning and welcome to the inauguration of this ASG Drishti Eye Hospital. Would like to give you a small background about myself. I have started practice in 1998 elsewhere in Malad, but I started in Virar in 2007, and it was in a very small clinic nearby only, and started with very few equipment and all, and as we gradually grew into practice and we started acquiring more and more equipments, but somewhere at the back of my mind I had this feeling that we are not practicing up to our potential. So we have joined hands with Envision Eye Hospital and ASG Group, and with their cooperation and help, we are starting with this huge center, and we are hoping to cater to all kinds of patients, and we have a wide range of equipment and services available here, right from cataract to retina to oculoplasty, pediatric ophthalmology, and glaucoma, cornea. We'll be serving all kinds of patients and all kinds of diseases will be managed here. And equipment-wise, we have acquired almost everything possible in ophthalmology here. So, and we have probably the first laser in this side of Borivali, I guess. And it's a very high-quality laser with very high speed and very accurate results with German technology. Hoping to do a lot of refractive work here also. Many visiting surgeons. We have Dr. Yash Parman for retina. Dr. Srushti Naik is also anterior segment surgeon. We have Dr. Ankita, Dr. Saumil Seth will be visiting for glaucoma and cornea for us. Dr. Kamlesh Gupta will be there for oculoplasty as well. Pediatric Dr. Kesarwani will be coming. So probably everything under the sun for ophthalmology will be available in this center. Hoping to do good work for the people of Virar. They don't have to travel far for everything now, as it used to happen earlier. We used to refer a lot of patients to Bombay side, and now with this center, we are hoping that we will not have to send anyone out of this center for any kind of treatment. So looking forward to starting this venture. I'd like to give over to Dr. Yash Parman. Drishti Eye Clinic. I am Dr. Yash Parman. I am a retina surgeon, and I also retina, uvea and ROP.
So I have 3 specialties. I have an experience of 9 years. I have done my education from Narayan Hospital, Mumbai Central, and I have done my retina fellowship from Narayan Internal in Bangalore. And after that, I have been working at Narayan Hospital as a professor, teaching residents and fellows in retina. During my time at Narayan Hospital, I used to get a lot of patients from Virar, and they had to travel all the way to Mumbai Central and Bombay side, जैसे सर ने बताया कि उनको उस तरफ आना पड़ता था. मैं फाइल्स देखता था, डायग्नोसिस हो जाता था, सर्जरी के लिए वहाँ आना पड़ता था क्योंकि इक्विपमेंट्स प्रॉब्ली नहीं थे वहाँ इस तरफ के. बट वी हैव कम विथ कंप्लीट OT फॉर रेटिना. यहाँ रेटिना की हर टाइप की कॉम्प्लेक्स सर्जरीज भी होगी. आई विल बी अवेलेबल फुल टाइम हियर एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट डिजीजेज, जो 2 इम्पॉर्टेंट डिजीजेज जिसकी अवेयरनेस और आपको भी थोड़ा इफ़ यू कैन अवेयर पीपल अबाउट इट. एक डायबिटीज़ रिलेटेड आँखों की प्रॉब्लम जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं. आज इंडिया डायबिटीज़ का कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में हैं और इट इज़ अ साइलेंट किलर इन ऑल फॉर्म्स. आपको डायबिटीज़ बढ़ जाता है, पता नहीं लगता, कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसके बाद पता लगता है कि किडनी खराब हो गया, पैर में गैंग्रीन हो गया. वैसे आँखों में ब्लीडिंग हो सकती है डायबिटीज़ की वजह से, और अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना हो तो ब्लाइंडनेस आ सकती है. और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे जो अपनी दोनों आँखें खो चुके हैं, दे बिकम कम्प्लीटली ब्लाइंड. इसमें कुछ यंग पेशेंट्स भी होते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटिक बोलते हैं. सो एवरी डायबिटिक should get his or her eyes screened every 6 months. Routine checkup is a must. करना ही चाहिए. दूसरी चीज़ें, और अगर कुछ लगा तो we are always there for treatment. Earlier the better. दूसरी चीज़ is retinopathy of prematurity. रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, 1 महीने से छोटे जो होते हैं बच्चे. प्रीमैच्योर मतलब जो पूरे 9 महीने में पैदा नहीं हुए, जो 8 महीने से अंदर पैदा होते हैं या 2 किलो से कम जो बच्चे होते हैं, उनमें ये ROP नाम की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो प्रॉब्लम है वो होने के चांसेस होते हैं. ये पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिजीज़ है. आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग लोग स्टिक लेके चल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का ROP की प्रॉब्लम रही होगी जो टाइम पे डिटेक्ट नहीं हुई और वो ब्लाइंड है. अगर इन बच्चों का सही टाइम पे हम स्क्रीनिंग करें, ये बीमारी डिटेक्ट हो जाए, तो एक सिंपल लेज़र या इंजेक्शन से उनकी लाइफ टाइम के लिए विजन बच जाएगी और ये एज एनी अदर नॉर्मल चिल्ड्रन अपनी लाइफ लीड कर सकते हैं. सो विल बी प्रोवाइडिंग ROP रिलेटेड ट्रीटमेंट ऑल्सो, स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट एवरीथिंग, और रेटिना रिलेटेड सारा सोल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड. थैंक यू. Dr. Srushti Naik, she is the associate here in this hospital. Good morning, everyone. I'm Dr. Srushti Naik. I completed my post-graduation from Vedanta Medical Institute, Dahano. Then I have been working in Shatabdi Hospital, Kandivali. Now I'm working in AHG Drishti Eye Hospital. मैं यहाँ कैटरैक्ट डायग्नोसिस करना और उसका ट्रीटमेंट देना, उसके बारे में बताती हूँ. उसके अलावा ग्लोकोमा है, स्क्विंट है, जिसके एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं. ये सब मैं कर पाती हूँ अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर हेमंत सर एंड डॉक्टर यश सर. जी जी, हमारे पास डायग्नोसिस और एज वेल एज ट्रीटमेंट के लिए सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी सब चीज़ों में है. इवन कैटरैक्ट, रेटिना, जैसे आपको बताया लेज़र. कैटरैक्ट में हम लोग फेकोएमल्सिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें स्टिचेस नहीं लिया जाता है, तो बिना स्टिच का वो कैटरैक्ट को इमल्सिफाई करके लिक्विड बना के हम निकाल देते हैं. और जो लेंसेज हम यूज़ करते हैं वो सबसे बेस्ट लेंसेज पॉसिबल हम ऑफर कर सकते हैं. मतलब आजकल बाईफोकल, ट्राईफोकल बोलते हैं, जिसमें दूर का, पास का, इंटरमीडिएट विजन सब दिखता है बिना चश्मे की सहायता के. तो उस प्रकार की हम लोग सर्विसेज कैटरैक्ट से रिलेटेड बता सकते हैं. रेटिना का जैसे डॉक्टर यश ने बताया, हमारे पास ग्रीन लेज़र है, आर्गन लेज़र है, डायोड लेज़र्स है, तो ROP का ट्रीटमेंट पॉसिबल है. तो ये सब जो मशीन्स हैं वो ज़्यादातर आई हॉस्पिटल्स में आपको नहीं दिखती है क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है और सबके पास अवेलेबल करना मुश्किल होता है. तो ये सेंटर में वो सब इक्विपमेंट जो रेटिना के लिए है वो भी अवेलेबल है. लेज़र जैसे मैंने आपको बताया लैसिक,
तो चश्मा, जिसको आजकल टीनेजर से लेके इवन 45-50 तक लोग चाहते हैं कि हम चश्मा नहीं यूज़ करें, उनके लिए लैसिक हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, जो इस साइड बोरीवली के इस साइड में किसी के पास नहीं है, हमारा फर्स्ट है। भी हाई स्पीड लेज़र है, टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस्ड है वो। ग्लोकोमा है, कॉर्निया है, बाकी सब चीज़ों में भी इस प्रकार पेरीमेट्री है हमारे पास। स्पेकुलर माइक्रोस्कोप करके होता है, हम जो कॉर्नियल एंडोथेलियल काउंट करते हैं वो कैटरेक्ट सर्जरी या कॉर्निया की कोई भी सर्जरी होती है, उसके पहला स्पेकुलर माइक्रोस्कोप भी बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मशीन हमने एक्वायर किया है। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजिकली जो भी एडवांस्ड है मशीन ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, हम यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत पेशेंट्स हम देखते हैं जो लेट एंड स्टेज में आते हैं, इसलिए एक तो शुगर कंट्रोल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा रूटीनली चेकअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वही चीज़ हम अर्ली स्टेज में पकड़ ले तो एक सिंपल इंजेक्शन या लेज़र से काम हो सकता है, सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पर बात जब सर्जरी जो एंड स्टेज में पहुंच जाती है, स्टेज 5 में, तो उसमें पूरी आँख में ब्लीड हो जाता है, पूरा आँख जो गोला है पूरा ब्लीडिंग से भर जाता है, तब उसको ऑपरेट करना हमारे लिए भी मुश्किल है, पेशेंट के लिए भी मुश्किल है, चैलेंज बढ़ जाता है। तो एटलीस्ट 6 मंथली नहीं तो ईयरली। जैसे इन्होंने बताया जो रेटिना का एवरी 6 मंथ्स आना चाहिए, तो हमारे पास OCT मशीन है, जिससे इसकी जो अर्ली स्टेज भी होती है, जैसे पहले के ज़माने में सिर्फ एक लाइट मार के देखा करते थे फंडस को, तो अभी वो नहीं, हम OCT से उसका जो अर्ली स्टेज है, जो दिखने वाला भी नहीं है लाइट मार के, उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो अर्ली स्टेज में अगर होता है तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इंजेक्शंस दे के या कुछ लेजर्स करके उसका इलाज कर सकते हैं। ये हम पेशेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि 6 मंथली करें, सब काम छोड़ के, डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, सब काम छोड़ के हर 6 महीने में एक बार विजिट करेंगे ना, तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ईजी है और उनकी आँख बचाना बहुत ईजी हो जाएगा। हमारे जो मशीन हमने एक्वायर किया है उसकी स्पॉट साइज बहुत छोटी है, 0.5, और उसकी स्पीड बहुत हाई है, 500 हर्ट्ज की। तो इससे क्या होता है कि जो इवन ज़्यादा नंबर भी जब होते हैं तो बहुत कम समय में उसका लेज़र हो जाता है। कई बार पेशेंट अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि इसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, कुछ पट्टी भी नहीं की जाती बाद में, तो पेशेंट थोड़ा एंक्शियस रहते हैं कि हमारे आंखों में लेज़र हो रहा है। तो जब हाई स्पीड लेज़र जब किया जाता है तो बहुत कुछ सेकेंड्स में ही उनके हाई पावर भी निकल जाता है, तो पेशेंट की एंग्जाइटी भी बहुत जल्दी कम हो जाती है, पेशेंट को तुरंत हम बाहर ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत खासियत है इस मशीन की जो हमने एक्वायर किया है। जैसे आपने बताया स्क्रीन टाइम जब बढ़ जाता है तो आंखों में कोई ड्राइनेस होती है उस प्रकार से, तो ड्राइनेस का इलाज करना भी हमारे यहाँ पॉसिबल है। हम लोग MGD करके एक कंडीशन आती है, उसकी एक लेजर आती है, वो भी हम लोग अवेलेबल रख रहे हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता है कि जो आंखों में सिक्रीशंस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हाई स्क्रीन टाइम, वो हम कोशिश करते हैं कम करना है, या उनकी ड्राइनेस कम हो जाती है, आंखों में जलन कम हो जाती है। पेशेंट को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, स्क्रीन टाइम लिमिट रखना चाहिए, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने चाहिए। जब कंप्यूटर से देखते हैं, जब ज़्यादा समय तक मोबाइल देखते हैं, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक्स होना चाहिए, हर आधे घंटे में, 1 घंटे में। और उसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, वो MGD का जो ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो लेज़र भी अवेलेबल है हमारे पास। लाइफस्टाइल, आजकल लोग बहुत लेट सोते हैं, आंखों को रेस्ट कम मिलता है, डाइटरी चेंजेस है, लोग समय पे खाना नहीं खा पाते बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आंखों को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना खुद का पहले ध्यान रखें। स्टार्टेड दिस बिग प्लेस, हमारा एक पॉलिसी रहता था कि हम किसी को पैसों की वजह से हम वापस नहीं भेजते, जितना हमको कॉस्ट इफेक्टिव पॉसिबल है उतने कॉस्ट में हम पेशेंट को करके दे सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ऐसे बड़े सेंटर्स में यूजुअली प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं, तो हमारे पास सब केटर करते हैं। जैसे मैंने बताया, मल्टीफोकल लेंसेज से लेके मोनोफोकल लेंसेज तक सब अवेलेबल है। तो कई जगह पे कितने चैरिटेबल्स में भी जो रेट्स में करते हैं उससे भी हम लोग कम में कर सकते हैं, ऐसे पॉसिबल नहीं। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एंड बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। ऐसा कोई डायबिटीज़ रिलेटेड मरीज़ नहीं है जिसको मुझे बोलना पड़ेगा कि आप यहाँ नहीं हो सकता, कहीं और दूसरे जगह जाके दूसरी अस्पताल में कीजिए। अगर वो कहीं हो सकता है तो अगर कहीं हो सकता है तो यहीं पे भी हो सकता है। सो वी हैव द बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी टू डील विद इट। ऑपरेशन होने के बाद एक बार लेंस बिठाया जाता है आंखों में, तो लेंस के पीछे एक लेयर होती है, परत होती है, तो कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद वो परत फिर से सफ़ेद होने लगती है। तो परत को सिर्फ OPD बेसिस पे लेज़र करके उसको क्लियर किया जाता है, ये एक कॉमन कारण है। और दूसरा कारण है जैसे उम्र बढ़ती है और अगर वो पेशेंट को या तो डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, तो उनकी आंखों का जो पर्दा है, जो रेटिना बोलते हैं,
वो सूखने लगता है, वो एज रिलेटेड चेंजेस बोलते हैं उसको। हम अगर नंबर नहीं है आपको तो 20 साल की उम्र के बाद वंस ईयर चेकअप ज़रूरी है। हम एडवाइस करते हैं अगर आपके पास डायबिटीज़ आपको हुआ है या ब्लड प्रेशर हुआ है तो हर 6 महीने में आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 18 ईयर्स की उम्र के बाद लेसिंग एडवाइस करते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है तो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर एक नंबर स्टेबल हो जाता है, वो एक डेफिनेटली एक कंडीशन है कि उनका नंबर एटलीस्ट पिछले 3 से 6 महीने में स्टेबल रहना चाहिए। एज यूजुअली 18 के ऊपर होती है तो अच्छा होता है। फिर हम लोग कुछ लेसिक के पहले कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे टोपोग्राफी होती है, पैकीमेट्री होती है, उसमें कुछ रीडिंग्स होते हैं जिसके बियॉन्ड हम लोग कर सकते हैं। उसके नीचे अगर रीडिंग है तो सेफ नहीं है पेशेंट के लिए, तो हम लोग मना करते हैं और दूसरा ऑप्शन देते हैं, जैसे ICL है, वो जैसे आंखों के अंदर डायरेक्ट लेंस बिठा सकते हैं बिना मोतिया को निकाल। तो अगर लेसिक नहीं हो पाता है तो हम पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं करते, हम उनको दूसरा ऑप्शन देते हैं। तो ICL में भी पॉसिबल है नंबर हो गया। और कॉर्निया अगर फिर से पेशेंट को ज़्यादा नंबर आते हैं और डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं, उनको फिर से करवाना है, बट कॉर्निया की थिकनेस जो बची हुई है वो अगर एडिक्वेट है तो हम लोग एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे दोनों, हम तो सब दोनों आंखों से ही देखते हैं हमेशा, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि उनकी एक आंख वीक है। तो अगर स्कूल में पता चलता है, टीचर बोलती है बहुत आगे आके बच्चा देख रहे हैं, माँ को पता चलता है कि बहुत आगे आके TV देख रहे हैं घर पे, तो ऐसे बच्चों को उनको रेगुलरली लाके चेक कराना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक ही आँख वीक होती है और दूसरे आँख से दिख रहा है, तो बच्चा बोल नहीं पाता कि मुझे दूसरी आँख से दिख नहीं रहा है। तो रेगुलर चेकअप पे आएंगे तो हम पता कर सकते हैं एम्ब्लायोपिया। उसके लिए हमारे पास क्योर-सी और बाइनॉक्स, ये 2 प्रकार की जो ट्रीटमेंट है स्क्रीन बेस्ड होती है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो वीक आँख है उसको हम लोग स्टिमुलेट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। 20 साल के बाद अगर कोई बताता है कि एक आँख वीक, हम कोशिश ज़रूर करते हैं, बट उसमें सक्सेस के चांसेस थोड़े से कहते हैं कि 20 मिनट्स में 20 सेकेंड के लिए 20 फीट से दूर देखना है। बट अभी आपको भी मालूम है 20 मिनट में, हर 20 मिनट में कोई यहाँ वहाँ देख नहीं पाएगा। तो मैं एटलीस्ट बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि एवरी 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स लुक मोर देन 30 फीट अवे, 20 और 30 फीट अवे। जैसे खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपका रूम लंबा है, ऑफिस लंबा है, तो थोड़ा दूर देखिए। तो उससे क्या होता है, आंखें रिलैक्स हो जाती है। जब हम लोग नज़दीक देते हैं, एनीथिंग बिफोर 10 फीट, तो जब हम नज़दीक देते हैं आंखों का एक कन्वर्जेंस होता है, तो उससे आंखें जल्दी थक जाती है, उसमें मसल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जब हम दूर देखते हैं ना तो हमारी आंखें रिलैक्स रहती हैं। तो जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि भगवान ने जब आंखें बनाई थी बहुत पहले, बहुत समय, तो सब लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, घोड़सवारी करते थे, दूर के चीज़ें देखते थे। उस ज़माने में नज़दीक की, तो हमारी आंखें इस तरह अडेप्ट हुए कि हम दूर में रिलैक्स रहते हैं। तो जब हम पास देखते हैं स्क्रीन में या मोबाइल में, तो फिर वो आंखें थक जल्दी जाती है। तो उसके लिए बीच बीच में दूर देखना ज़रूरी है। और एक चीज़ बोलता हूँ, हर 2 घंटे के बाद जो भी स्क्रीन को, मोबाइल और कंप्यूटर हो, हर 2 घंटे बाद नहीं, आप आंखों में अंदर पानी थोड़ा सा स्प्लैश करिए, तो आँख थोड़ी सी गीली हो जाएगी। जब गीली आंखें रहती है तो आँख थकती नहीं, आँख जब ड्राई हो जाती है तो आँख जल्दी थक जाती है। ऐसा तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे ना तो कोई विषय नहीं है। और ब्लिंकिंग, एक ब्लिंक नॉर्मल होना चाहिए। जैसे हम मोबाइल देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, हम लोग ज़्यादा देर तक आँख खुला रखते हैं, हम स्टेयर करते हैं, तो स्टेयर करने से आंखें जल्दी ड्राई हो जाती है। ब्लिंक करते हैं तो आँख गीली रहती है। तो ये 3 चीज़ें हमेशा। डाइट में हम लोग बहुत आजकल बाहर का खाना खाते हैं और उसमें नरिशमेंट नहीं रहते, विटामिन नहीं रहते। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स है, इससे आंखों की सेहत हमेशा अच्छी रहती है। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंखों के लिए कौन से स्पेशल फूड सीजनल जो अच्छा है? सीजनल में तो ये जो हम लोग, मैं एक सिंपल बोलता हूँ, नॉन स्वीट फ्रूट्स, जो फ्रूट्स मीठे नहीं है, जैसे चिकू है, मैंगो है, ये सब स्वीट होते हैं, तो ये आंखों के लिए हेल्दी नहीं है। जैसे अदर्स है, जैसे पपैया है, वाटरमेलन है, फिर वो नाशपाती भी अच्छे हैं। सीजनल जो भी अच्छे हैं आप लीजिए, बट इतने कि वो मीठे रहते हैं ना तो ज़्यादा नरिशमेंट नहीं देते, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा सर, एक चीज़ जानना था, आज के तारीख में एक बहुत कॉमन डिजीज है कैंसर है। हाँ जी। तो क्या ये आंखों को भी इफेक्ट करता है? आंखों में हो सकता है? बहुत रेयर है सर, बहुत कम चांसेस है। होता है, डेफिनेटली होते हैं, बट बहुत रेयर है। अच्छा, तो जैसे बॉडी किसी पार्ट में है तो उससे आँख के इफेक्ट पड़ता है उसका? बहुत कम पहुंचता है वहाँ पर। जैसे आपने सुना होगा कैंसर जब स्प्रेड होता है तब लिवर में होता है, किडनी में होता है, जैसे स्टमक में होता है, तो वैसे आँखों में पहुँचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बहुत कुछ रेयर डिजीजेज है जो आँख तक पहुँच पाते हैं। आँख तक 2 ही चीज़ें बहुत बुरी है, एक तो डायबिटीज़ और एक ब्लड प्रेशर।